तो इन टूडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट थॉमस हार्डी। आज की क्लास में हम हार्डी को लेके बात करेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हार्डी देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट तो आपके ध्यान में रखना है कि हार्डी जो है ही वाज अ वेल नोन नॉवलिस्ट, अ वेल नोन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के बहुत बड़े नॉवलिस्ट में से रहे हैं। एंड स्पेशली he is known as a regional novelist, या he comes in the category of what, he comes in the category of रीजनल नावल। जो रीजनल नावल का जो पॉपुलैरिटी है, जो उसका स्टार्टिंग है, जो चीजें रही हैं, यू विल कम टू नो कि उन्होंने रीजनल नावल लिखना शुरू किया। सो देर आर टू आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हार्डी इज अ वेल नोन रीजनल नावलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। Number two, when we talk about a regional novel, especially when we talk about regional novels, so it's a type of novel in which we find a particular region is taken, and that particular region, उस particular region को लिया जाता है, and that particular region is what, that particular region is celebrated, that particular region is idealized, not the region but its culture, you can say language and manner, attitude, and the people who are living there। ये सबका सब चीज क्या होता है, उसको आइडियलाइज किया जाता है। सो देयर आर टू ऑफ फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है, टू ऑफ फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहला चीज क्या ध्यान में रखना है कि हार्डी अ वेल नोन रीजनल नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट की व्हाट इज रीजनल नावल। रीजनल नावल इज अ टाइप ऑफ नावल इन विच वी फाइंड अ पार्टिकुलर लोकेलिटी। the novel is the setting of the novel we find in a particular region। you can just note down this point कि the setting of the novel occurs in a particular region, particular locality। एक particular region में, एक particular locality में वो चीज जो है वहां पे क्या होता है, ऑकर होता है। ओ डबल सी यू आर, ऑकर। वी फाइंड ऑकरेंस, we find what, we find the occurrence of the novel in a particular region or locality। and what the region or what the locality you find in the work of in the novel of Hardy, you find Wessex, Wessex। second या third important point, Wessex। again I would like to repeat, Hardy, a well known regional novelist of Victorian age, number one। number two, when you talk about ki what is a regional novel, a type of novel in which we find the setting of the particular region और द सेटिंग ऑफ द पार्टिकुलर लोकेलिटी। जो भी नावल लिखा जाएगा वह एक पार्टिकुलर रीजन या पार्टिकुलर लोकेलिटी में उसका सेटिंग हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रीजनल नावल। and you find that ki why, what do you find there, you find that ki that particular locality, that particular you can say कि जो वो locality है या जो region है, that is going to be idealized। उसको क्या किया जाता है, उसको idealize किया जाता है। वो particular चीज क्या होता है कि उसको that particular region is going to be idealized, या उस locality को उसको किया जाता है। तो this is an other important point, you find that कि this is another important point। and how that locality, how that region is going to idealize, it is going to idealize, it is going to be described, yeah, the particular culture। you have to remember that culture, attitude, लैंग्वेज, रिलीजन वहाँ का, इन सब चीजों को लेकर के क्या किया जाता है, या ह्यूमन नेचर। तो यू कैन नोट डाउन दिस टू और थ्री पॉइंट्स, कल्चर, एटीट्यूड, religion, and you can say way of living and manner। culture, attitude, way of living, मैनर एंड रिलीजन, वहाँ का इस इन सब चीजों को, और उसके साथ साथ ह्यूमन नेचर, ये चीजें वी फाइंड दैट कि दैट पार्टिकुलर रीजन इज गोइंग टू बी the people who are living there, the people who are living in that region, who are they, how do they behave, what ultimately religion they have,
All these things we find, तो those things are going to be idealized. उन चीजों को क्या किया जाता है, एक तरह का आइडियलाइज किया जाता है, या उन चीजों को जो है काफी अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है उसका उसको आइडियलाइज के साथ साथ यू विल कम टू नो कि इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, if there are any issues related to human beings, then that problem, then that thing is going to be generalized. One thing is what, one thing is idealization and second thing is that is going to be generalized. तो वहाँ का जो भी कल्चर होगा, जो चीजें होंगी, उन सब चीजों को जनरलाइज किया जाता है, एंड इट इज टोल्ड दैट कि द प्रॉब्लम विच वी आर सीइंग हियर, द प्रॉब्लम विच वी आर फाइंडिंग इन दिस रीजन और इन दिस locality, it does not mean कि it is occurring only here. You can see these things anywhere in any corner of the world. If you go, if any village of England has been taken, it does not mean that that is only the problem of that village, but that problem is going to be generalized. And if you go in another village of England, if you go in any other village of Europe, the same problem, the same attitude, the same manner, the same thing, with some changes, you will find that. So what I want to say, what I want to tell you, कि you just come to know, या you find it कि वी सी दिस, वी सी दिस प्रॉब्लम्स कि रीजनल नॉवेल में जो नॉवेलिस्ट होता है वह एक पार्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करता है। उस पार्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ का जो लोग हैं, उन लोगों का जो कल्चर है, उन लोगों की जो आइडियोलॉजी है, उन लोगों का जो अपना वे ऑफ लाइफ, जो वे ऑफ लिविंग है, एटीट्यूड है, मैनर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, these things उसको उस पर वो क्या करता है, द पार्टिकुलर नॉलेज ही टॉक्स, ही नरेट्स, ही टेल्स, दिस इज द पॉइंट, दीज आर द पॉइंट। और जब उसको बताएगा तो ही नॉट ओनली टॉक्स, ही नॉट ओनली नरेट्स, बट ही generalize and idealize. These are the two words which you have to remember: generalizes and idealize. So what you find there, you find problems, that and those are not only the problems of that particular village, but such type of problems are taken which are associated with human beings living in any corner of the world. If there is a problem of love, if there is a problem of religion, if there is a communal hatred feeling, so you can just see that these problems are what, such a problems are taken, and these problems are such a problem which you find in any corner of the world, either in lesser way or in greater way, थोड़ा सा या or in larger way, you find these problems. So what I want to tell you, what I want to say कि this is the beauty या this is the characteristics of the regional novel, कि particular region, वो पार्टिकुलर रीजन क्या है, वेसेक्स है। वेसेक्स जो एक विलेज है लंदन का, उस विलेज को जो है क्या किया है, हार्डी ने लिया हुआ है, और वहां के बारे में क्या बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट द पीपल हु आर लिविंग देयर, नंबर वन पॉइंट। एंड व्हेन ही टॉक्स अबाउट द पीपल हु आर लिविंग देयर, तो उन लोगों के बारे में वो क्या बात करते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका यू कैन से कि जो बिलीफ है, बिलीफ उनका जो कुछ भी है, और जो उनका अपना सोशल लाइफ है, लैंग्वेज को भी लेकर, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। और इसके अलावा एक्सेप्ट इट यू आल्सो सी, या एक्सेप्ट इट यू आल्सो फाइंड दैट द ब्यूटी ऑफ दैट विलेज इज आल्सो, यू कैन से कि डिस्क्राइब ब्यूटी ऑफ दैट विलेज, उस विलेज का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, ओपन फील्ड हो गया, तो यू आल्सो फाइंड द नेचुरल ब्यूटी, एक जिससे आप कह सकते हैं कि एक जो उसका जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जो उसका जियोग्राफिकल बाउंड्री है, यू फाइंड दैट थिंग। तो इस तरह का जो है क्या कहा जाता है, इस तरह तो रीजनल जो नावल होता है, उस रीजनल नावल में we find the concept of the what we find the concept of local color, जो एक लोकल कलर है, या टोपोग्राफी का, there is a concept of topography, so you can write down these two words, टोपोग्राफी और लोकल कलर। वहाँ का जो लोकल कलर है, उसका जो आबो हवा है, जो क्लाइमेट है, जो और चीजें हैं, उन सब चीजों को लेकर के बात की जाती है। एंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इन अ वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज, यू विल कम टू नो कि things are going to be described and narrated. And when things are going to be described and narrated, and especially some issues, if the some issues have been taken, you will come to know कि
Those issues are associated with human beings and the main objective is to reveal human nature. जो भी प्रॉब्लम लिया जाएगा वह सारा का सारा प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होगा? ह्यूमन नेचर से होगा। वह सारा का सारा प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग से होगा और ह्यूमन नेचर को लेकर के बात कही जाती है। अब अगर आप इस पे बात करते हैं कि कौन कौन से रीजनल नॉवेल रहे हैं, तो यू कम टू नो कि उनके जो रीजनल नॉवेल रहे हैं उनमें से एक है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ कैस्टा ब्रिज, टेस ऑफ द डी अबरवाइज, जूड द ऑब्सक्योर, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। सो मेनी नॉवेल्स, ऑल दीज थिंग्स आई एम टेलिंग यू, बट यू विल कम टू नो कि उन्होंने बहुत सारा जितना भी नॉवेल लिखा है उन सब में रीजनल नॉवेल का यही कॉन्सेप्ट अगर आप जाते हैं यू फाइंड राजा राव का कांथापुरा, राजा राव का कांथापुरा एंड सेम चीजें आर के नारायण का मालगुडी इंडिया में जो इनका सेटिंग रहा है। तो यू फाइंड दीज टू नॉवेलिस्ट इन इंडिया, एक तो राजा राव का कांथापुरा, दूसरा मालगुडी जो सेटिंग आर के नारायण का रहा। तो यू फाइंड दीज थिंग्स, ऐसा नहीं कि ये चीजें वहीं पर केवल रही, बट दीज थिंग्स यू आल्सो फाइंड इवन इन इंडिया। लेकिन होता क्या है कि द सेम थिंग कि उस पार्टिकुलर रीजन को, उस पार्टिकुलर चीज को लेकर के हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेड एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉवलिस्ट, जो रीजनल नॉवलिस्ट होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि टू पुट दैट रीजन या दैट लोकेलिटी या दैट मीन्स दैट प्लेस एट इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, थ्रू आर्ट, थ्रू लिटरेचर, दोज कल्चर, दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेड उसको। और एंड द प्रॉब्लम आर द थिंग्स विच दे टेक, दोज आर नॉट ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ means human beings, men and women who are living there, but those problems are going to be generalized, उनको generalize करने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज another important point, वो चीजें वहां पे रही है। थर्ड का अगर आप बात करेंगे या और भी चीजों को लें तो यू विल कम टू नो कि देर आर सम अदर पॉइंट्स आल्सो, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमें समझना है। एक तो इफ आई टॉक अबाउट वन पार्टिकुलर उनका नावल जो मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज है, इन द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज यू विल कम टू नो कि हाउ a particular the plight situation of the lady has been presented, how a lady, how means the husband is a drinker, how he sells his wife, this particular problem. So just I want to know कि if Hardy has taken this problem in 19th century England, 19th century England, when England was the, when there was the concept of imperialism and it was said कि the sun never sets in the kingdom of England. If you find this problem या इस तरह की चीज को अगर आप लेते हैं तो you will come to know कि हार्डी का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो हार्डी का कॉन्सेप्ट यही था कि ही जस्ट वांट्स टू टेल कि undoubtedly English people boast, they say the sun never sets in my kingdom. But even in England, you can just see this problem. And what is the problem? There is a husband who takes a drink and he sells his wife, where he sells his wife in market. And what is the response of the society? तो इमानेंट विल, आई एम नॉट टेलिंग कि उनका नॉवेल का फिलॉसफी क्या है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक पार्टिकुलर रीजन जो है वेसेक्स है, उस वेसेक्स में एक कैरेक्टर है हेंचर्ड और उसका अपना जो वाइफ है एलिजाबेथ, नॉट एलिजाबेथ, उसकी वाइफ का नाम आई एम मिसिंग हियर। यू विल कम टू नो कि व्हाट द रिलेशनशिप डू यू फाइंड, देन द क्वेश्चन इज दैट कि डू यू फाइंड कि there is a husband who takes a drink and he sells his wife, he humiliates his wife, he just beats his wife. Is it a problem which is only found in Wessex, yeah? Is it a problem which you can see in any corner of the world? In most of the places of the world, you can just see this problem, and this is why the feminism came. Now, this is why we talk about gender studies. This is why we talk about. So, this is a novel in which you find this particular problem, but the problem that is located where, that the problem that is situated where, that is associated with what, that is a particular region. But the objective of the novelist is what, to generalize it and to present that this is not a problem which is only here, but you can see this problem in any corner of the world. This is another point.
इफ आई टेक हिज नॉवेल फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसका जो टाइटल है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एंड वी नो इट वेरी वेल कि दिस टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज द नॉवेल का जो टाइटल है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम थॉमस ग्रेज एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो नॉवेल है उसका टाइटल कहाँ से लिया गया है। तो द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम थॉमस ग्रेज एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मैडिंग क्राउड पागलों की भीड़। तो हार्डी का ये कहना था कि जो शहर में जो लोग रह रहे हैं दे आर द मैड पीपल। हमें जो है कहाँ पे चलना चाहिए, गांव में चलना चाहिए और वहां का देखना चाहिए कि वहां का ब्यूटी क्या है, वहां का क्या जो है एक तरह का लोकेशन है, कलर है, क्लाइमेट है, टेस्ट है, कल्चर, एटीट्यूड, वे ऑफ लिविंग, मैनर, ऑल दीज थिंग्स। तो उन्होंने क्या किया कि शहरों की जो पागल भीड़ है उसको छोड़ करके गांव की ओर वो शिफ्ट करते हैं। मतलब अपने नॉवेल में उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ही वांट्स टू से, एंड व्हेन ही गोज देयर ही फाइंड द सेम प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ द मटेरियलिज्म, द पैरासाइट ऑफ so many things का जो प्रॉब्लम he saw in city life, he find that the same problem is also there, the same problem he found there। और उस प्रॉब्लम को दिखाने के लिए ही हैज टेकन व्हाट, ही हैज टेकन वेसेक्स। और उस वेसेक्स को गैब्रियल ओक का कैरेक्टर आप देखिएगा, और जो भी वहां पे कैरेक्टर्स वगैरह रहे, यू विल कम टू नो कि जितना भी कैरेक्टर्स उन्होंने लिया हुआ है उन सब में एक मैडनेस है। तो थ्रू दिस नॉवेल ही जस्ट टोल्ड अस कि मैड पीपल आर नॉट ओनली फाउंड इन city area, but we come to know ki that particular problem, that particular materialistic life, that culture, that thing directly or indirectly, we find that parasite is also there. That parasite you can just see or find in village area also. So that is the thing we find, and how the life of a woman is presented in that novel. Ki how many people approach in the last he asks, she asks someone, but वहां पर भी उसके साथ चीट होता है। The same thing you find Tess of the Deer but Wild Make, how Tess has been treated, how Tess has been taken। जूड द ऑब्सक्योर में ऑब्ससिनिटी को लेकर के या और चीजों को लेकर के कहा गया कि ये नावल में ऑब्ससिनिटी है, इस वजह से उसको बैन कर दिया गया था। तो जितना भी नावल ना, उन सारे नावल में देर आर कॉमन पॉइंट्स एंड देर कॉमन थिंग्स, एंड व्हाट आर दैट थिंग कि ही उनका अपना नावल का जो सेटिंग है वो एक पार्टिकुलर रीजन है, वेसेक्स है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ह्यूमन नेचर। और उस ह्यूमन नेचर को उन्होंने बताया कि द पार्टिकुलर प्रॉब्लम विच वी फाइंड विच वी सी इन सिटी एरिया दैट इज आल्सो इन विलेज एरिया, वो हो सकता है कम या ज्यादा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं तो दोज प्रॉब्लम्स वी हैव टू सी, दोज प्रॉब्लम वी विल वी हैव टू फेस। एंड उन्होंने क्या किया, उस प्रॉब्लम्स को ऐसा प्रेजेंट किया कि ही हैज, आई एम नॉट सेइंग कि दैट की his objective was ki only to present that this problem is only located, yeah, this problem is only found in this region, but he just told to all of us ki we can see this, where we can see it in any corner of the world, because human nature ही ऐसा होता है। और उसी चीज को लेके चाहे आप कांतापुरा की बात करिएगा, चाहे आप और कहीं पे बात करिएगा, तो एक तो पॉइंट है जो मैंने हल्का सा डिस्कस किया कि वो रीजनल नॉवेलिस्ट है, रीजनल नॉवेल क्या होता है, विक्टोरियन एज के उनकी कुछ नॉवेल, जस्ट एक उसमें। दूसरा उनका एक एस्पेक्ट आता है उनकी पोइट्री को लेकर के, हार्डी एज अ पोएट, उन्होंने पोयम भी लिखा हुआ है। when you talk about Hardy as a poet, then remember that Hardy is famous, yeah, Hardy was an established novelist, he was not an established poet। as a poet उनका बहुत उन्होंने कंपोज किया, so many poems he has written, but as a poet he was not famous, अगर उतना ज्यादा फेम उनको नहीं मिला। what the what he did in the field of novel, जो उन्होंने नावल के फील्ड में किया, नेम, फेम, respect, honor, which he achieved, which he got in the field of the novel, he could not achieve as a poet। लेकिन उनकी पोइट्री में भी क्या है, ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर के साथ साथ एक और चीज है, नोट ऑफ मेलियोरिज्म या मेलियोरिज्म। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो विक्टोरियन एज रहा है, विक्टोरियन एज वाज एन एज ऑफ ऑप्टिमिज्म, इट वाज एन एज ऑफ पिसिमिज्म, और साथ ही साथ मेलियोरिज्म। तो ऑप्टिमिस्टिक जो पोएट थे, ऑप्टिमिस्टिक पोएट में कौन थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग थे। पिसिमिस्टिक पोएट कौन थे, आपके मैथ्यू आर्नल्ड थे, जिस पर हमने बात भी किया था काफी डिटेल में उनका।
लेकिन जब आप बात करते हैं हार्डी को लेकर के, तो हार्डी मेलियोरिस्टिक है, और मेलियोरिस्टिक एक ऐसा टर्म है विच रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच यू फाइंड बोथ ऑप्टिमिज्म एंड पिसिमिज्म. Most of his poems starts with pessimistic notes but concludes with optimistic notes. उनका जितना भी पोयम है वह पिसिमिज्म से शुरू होता है, लेकिन कंक्लूड होते होते कहाँ पहुंच जाता है, वो जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वी फाइंड. तो ये जो सिचुएशन होता है, ये जो नेचर होता है, इसको क्या कहा जाता है, मेलियोरिज्म. MELIORISM. इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज मेलियोरिज्म, तो जो मेलियोरिज्म है, इट्स अ टर्म या इट्स अ वर्ड विच रिफर्स टू द मिंगलिंग सिचुएशन ऑफ द ऑप्टिमिज्म एंड पिसिमिज्म. दोनों आइडियोलॉजी को में विश्वास करना कि लाइफ है, एंड लाइफ हैज टू एस्पेक्ट्स, गुड, बैड, नेगेटिव या पॉजिटिव, यू कैन से डे नाइट, एक बाइनरी का जो होता है, लेकिन उस बाइनरी पे उसको बिलीव करना, उस पर यकीन करना, या उस तरह की चीजों को लेकर के. तो उनकी पोयम में मेलियोरिज्म है, एक चीज. दूसरा, उन्होंने अपनी पोयम में एक कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इमानेंट विल. IMA, if I use the word IMMA, N-E-N-T, immanent will, WILL. Often you will find it in capital letter, immanent will. He find that there is some power, कोई ना कोई एक ऐसा सुप्रीम पावर है. उन्होंने उसके लिए गॉड, डायरेक्ट गॉड वर्ड नहीं यूज किया, बल्कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इमानेंट विल का, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई इमानेंट विल है जो कि इस दुनिया को चला रहा है. There is some immanent will. He did not use the word God, but what did he say? He say immanent will. And और उसको, इसके अलावा उन्होंने उन्होंने डेस्टिनी में बहुत यकीन किया हुआ है कि इफ यू आर अ गुड पीपल, दैट डजेंट मैटर व्हाट इज योर डेस्टिनी, व्हाट इज रिटन बाय द गोल्डन पेन ऑफ गॉड. गॉड के गोल्डन पेन के द्वारा जो लिख दिया गया है, दैट कांट बी चेंज. उन्होंने इमानेंट विल में यकीन किया, डेस्टिनी में यकीन किया. ये दोनों चीजें उनके नॉवल में भी देखने को मिलेगा, पोयम में भी देखने को मिलेगा. And except it, you will come to know कि as a poet he bridges Victorian and modern poetry. विक्टोरियन और मॉडर्न पोइट्री को जोड़ने का काम, पुल की तरह का काम अगर कोई करता है, तो कौन करते हैं, हार्डी करते हैं. तो हार्डी की पोयम में मेलियोरिज्म है. हार्डी की पोयम में जो है इमानेंट विल का कॉन्सेप्ट है. इमानेंट विल क्या है, एक सुप्रीम अनसीन पावर विच वी कैन फील बट नॉट सी, वन whom we take as God. और जो हार्डी थे, उन्होंने एक जगह ये लिखा भी कि गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज नॉट राइट विद द वर्ल्ड. ऐसा लगता है कि ईश्वर स्वर्ग में नहीं है और दुनिया में कोई चीज बेहतर नहीं चल रहा, सब का सब खराब चल रहा है. ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है. और इसी के अगेंस्ट में जो है रॉबर्ट ब्राउनी ने लिखा कि गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड. ईश्वर दुनिया में, ईश्वर स्वर्ग में है, दुनिया में सब बेहतर चल रहा है, दुनिया को चलाने के लिए ईश्वर की जरूरत है. वो इतना ऑप्टिमिस्टिक थे. तो यू कैन जस्ट सी टू स्टेटमेंट्स गिवन बाय टू पोएट्स, दो स्टेटमेंट्स, और दोनों दो पोएट्स के द्वारा दिए गए हैं, दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंसेस यू सी. So you come to know कि Browning says God is not in his God is in his heaven, all is right with the world. Hardy says God is not in his heaven, all is not right with the world. These two things. Second important point कि एक डेस्टिनी को लेके, डेस्टिनी के अलावा उनका जो पोयम है, या एज अ पोएट ही ब्रिजेस विक्टोरियन और मॉडर्न एज को जोड़ने का काम करते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी पोयम में तीन सब्जेक्ट मैटर है, और भी ज्यादा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यू कम टू नो, एक तो लव, दूसरा वॉर, और तीसरा डेथ. इन सब तीनों चीजों को उनकी पोयम में, लव भी आपको देखने को मिलेगा, वॉर भी आपको देखने को मिलेगा, और डेथ का भी कॉन्सेप्ट है. इन तीनों पॉइंट को लेके उन्होंने बात किया हुआ. उनकी जितनी भी पोयम, अगर आप, उनका एक पोयम है डार्कलिंग थ्रश. डार्कलिंग थ्रश इज अ ब्यूटीफुल लिरिक, एंड यू विल कम टू नो कि डार्कलिंग थ्रश इट्स अ नेम ऑफ अ बर्ड. थ्रश एक बर्ड का नाम है, और वो जो बर्ड है जो है, where it was sitting in the mid of the leaves and not visible, Hardy could only see the melodious plot poured by that bird. तो वो जो थी ना, वो चिड़िया जो है,
उनके अपने जो कॉपीज गेट था, उनके घर का गेट था, और 31 दिसंबर 1899 को परहैप्स वो पोयम कंपोज की गई थी। और काफी ज्यादा ठंडी थी, तो वो अपने घर का जब गेट बंद करने जाते तो उसके ऊपर से एक आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ पौधा जैसा था जो उनके घर के मेन गेट से ऐसा गया हुआ था, तो वो बर्ड उसी में कहीं छुपी थी। एंड हार्डी ये कहते हैं कि ऑल ओवर द साइड देयर वाज ओनली व्हाट घोस्टली एटमॉस्फियर, GHOSTLY, घोस्टली एटमॉस्फियर, डार्क, gloomy and hopeless situation, despair, all these things. But he hears the beautiful voice of that bird. That bird is not visible to Hardy, and Hardy says that कि ऐसा लगता है कि this particular bird is giving what? This particular bird is giving a note of hope, कि इवन दुख में भी हम कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि इसका एक सुख का या एक होप का, जो उसमें एक रेज ऑफ होप को वी कैन एक्सपेक्ट, ये चीज उन्होंने बताया। तो आप ये देखेंगे कि शुरुआत किससे हो रहा है, शुरुआत पिसिमिज्म से हो रहा है, लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है, उसमें ऑप्टिमिज्म से हो रहा है। इसलिए इस आइडियोलॉजी को क्या कहा गया, मेलियोरिज्म कहा गया। इसके अलावा उनका एक और पोयम है जो कि है आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड्स में हार्डी ने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की है कि यू कैन जस्ट से प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, प्रोटेक्टर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जस्ट एज इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए, तो वे वो चाहते हैं। और उनका एक क्वेश्चन है कि व्हेन आई विल डाई हाउ द पीपल विल रिमेम्बर, जब मैं मरूंगा तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे। तो उनकी एक ख्वाहिश है कि द पीपल शुड रिमेम्बर मी एज द प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट के प्रोटेक्टर के रूप में याद करें मुझे, कि जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं जो नेचर ने बनाए हैं, उनको उनकी हिफाजत के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता था। तो उस पोयम में उन्होंने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया है, प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ सम पोयम्स। एक तो डार्कलिंग थ्रश है, DARKLING, डार्कलिंग थ्रश का स्पेलिंग THRUSH। एंड द सेकेंड पोयम इज व्हाट, आफ्टरवर्ड्स। एंड इन दैट पोयम ही सेज व्हाट, ही सेड कि आई विल बी रिमेम्बर एज प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। और एक उनका पोयम है टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड, जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को दिखाता है। टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड, कि एक भिखारिन है, वह एक बेबी को जन्म देने वाली है, तो हार्डी उस बच्चे से कहते हैं कि तुम इस दुनिया में ना आओ, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खराब है। यहाँ पे जो लोग बहुत जो आ चुके हैं, दे डिडंट गेट एनी जॉय, दे डिडंट गेट एनी प्लेजर, दे डोंट फाइंड दैट लाइफ इज गुड एट ऑल। तो ही रिक्वेस्ट दैट यू डोंट नीड टू कम। फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं तुम्हें आना चाहिए, इतना कहने के बाद फिर भी कहते हैं नहीं तुम्हें आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? हो सकता है कि आने वाली शताब्दी या आने वाला जो समय हो वो बेहतर हो। तो एक उम्मीद उनकी पोयम में लास्ट में बिल्कुल नजर आती है कि ही एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल बी बेटर, और तुम अपना भाग्य लेकर के आओगे। वी डोंट नो कि व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, क्या आपका डेस्टिनी कैसा है। तो ये चीज जो है वहां पे तुरंत उनका टोन बदल जाता है। एक तो नोट ऑफ पिसिमिज्म, निराशावादी से शुरू होगा लेकिन आशावादी में तब्दील हो जाएगा, यह उनका। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या है, मेलियोरिज्म। इसके अलावा एक उनका और पोयम है कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेन्स करके है, जहां पे इमानेंट विल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है। जो जो टाइटैनिक शिप था, उस टाइटैनिक शिप को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ है कि जब जो है जैसे जैसे टाइटैनिक शिप जो है तैयार हो रहा था, वैसे ही एक आइस बर्ज, बड़ा सा आइस बर्ज, बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा को आइस बर्ज कहा जाता है, वह आइस बर्ज समुद्र में तैयार हो रहा है। उधर उसको उसको कोई नहीं देख पा रहा है, और इधर जो है जो शिप के बनाने वाले, टाइटैनिक जो जहाज है उसके बनाने वाले लोगों का ईगो बढ़ रहा है, और वे कहते हैं कि ये जो शिप है कभी डूबेगा नहीं। उधर उनके ईगो का कत्ल करने के लिए ईश्वर किसको तैयार कर रहा है, आइस बर्ज तैयार कर रहा है। फिर दोनों का मुलाकात कहाँ पे होती है, समुद्र में होती है, दोनों टकराते हैं और इंसान का ईगो टूट जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो इमानेंट विल है, जो इनडायरेक्ट वे में गॉड है या एक ऐसी शक्ति है विच यू कांट सी बट फील, वह जो है इंसान की हर ईगो को तोड़ देता है। तो ये चीज वहां पे उन्होंने कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेन्स में बताया है। एक उनका पोयम है ड्रमर हॉज करके। ड्रमर हॉज जो है वार पोयम को लेकर के है, लेकिन उस वार पोयम में भी उन्होंने दिखाया कि देर वाज अ सोल्जर ड्रमर हॉज, ही फॉट ब्रेवली बट वी डोंट नो हु ही वाज, ऑल दिस थिंग। एक उस पोयम की खासियत ये रही है, उन्होंने दिखाया कि बॉर्डर पर सोल्जर्स आर डूइंग देयर ड्यूटीज, और फील्ड में किसान जो है
खेत जोत रहा है, तो जो जोतता हुआ जो किसान, जो खेत को जो किसान जोत रहा है, दैट इज द सिंबल ऑफ लाइफ। वह जीवन का प्रतीक है कि उम्मीद की किरण मौजूद है वहां पर। लेकिन एक दूसरी तरफ जो सोल्जर लड़ रहे हैं, वे इंडिकेट करते हैं कि दुनिया में कितना डिस्ट्रक्शन है। वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो अपनी एक पोयम में उन्होंने दो इमेज को रखा हुआ है। वन इज द इमेज ऑफ द सोल्जर एंड सेकंड इज द इमेज ऑफ द प्लफ मैन। जो प्लफ मैन है, हु इज कल्टिवेटिंग द लैंड, एंड कल्टिवेशन ऑफ द लैंड मीन्स व्हाट, कि देयर इज द फर्टिलिटी, देयर इज द होप, देयर इज द गुडनेस, वर्च्यू, या देयर इज द एक्सपेक्टेशन कि लाइफ विल बी बेटर। But the soldier who is unbothered, doing his duty, fighting against enemies, what does it indicate? It indicates that there is destruction, devastation, uh, मतलब सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ सा है एक तरह से। वी फाइंड कि उसमें तो ये दो इमेज दे करके उन्होंने उसमें किया। तो वार का स्पिरिट भी है, इमानेंट वेल का भी कॉन्सेप्ट है, पिसिमिज्म भी है, ऑप्टिमिज्म भी है, मेलियोरिज्म भी है, ऑल दिस थिंग्स। और डेस्टिनी को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना हुआ है, नॉट ओनली इन द पोयम, इवन और भी। उनका एक लव पोयम है जो उन्होंने कई लव पोयम उन्होंने लिखा हुआ है, और जिसमें एक मुझे याद आ रहा है द वाइस करके। उन्होंने अपनी बिलव्ड की, अपनी वाइफ की याद में उन्होंने करके लिखा हुआ था। एंड ही रिकॉल्स दोस पास्ट डेज, की कितना खूबसूरत वो पास्ट डेज थे, व्हेन शी कम इन ब्लू गाउन टू मीट हर अंडर अ ब्यूटीफुल ट्री। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड टू लव पोयम भी उन्होंने कंपोज किया हुआ है। हार्डी का एक लिरिकल ड्रामा है जिसका नाम है द डायनेस्ट, और ये लिरिकल ड्रामा कई बार पूछा भी जा चुका है। और ये जो एपिकल मैनर में, दैट इज अ लिरिकल ड्रामा बट इन एपिकल मैनर, उसमें उन्होंने वाटरलू वार का जिक्र किया है। वाटरलू वार जो हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था, उस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के, तो नेपोलियन बोनापार्ट का, वाटरलू का, ऑल दिस थिंग्स, तो उन्होंने डाइवर्सिफाइड मोड में सब्जेक्ट मैटर लिया हुआ है। और उस डाइवर्सिफाइड मोड में उन्होंने नरेट भी किया, एक्शन भी किया और एक्सप्रेस भी किया। नावल में उन्होंने नरेट किया, द डायनेस्ट में एक तरह से परफॉर्मेंस को जैसा उन्होंने दिया हुआ है, और अपनी एक्सप्रेशन उनका आपको उनकी पोयम में देखने को मिलेगा। एंड व्हेन यू गो विद हार्डी, तो रियली में वेल नोन नॉवलिस्ट, आई थिंक अ वेरी पॉपुलर पोएट, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, ये सब उनका क्वालिटी रही है हार्डी की। वो क्रिटिक के रूप में तो नहीं थे, लेकिन आई थिंक कि लाइफ को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा, एंड वट एवर ही सा, वट एवर ही फेल्ट, ही नरेटेड इट ब्यूटीफुली। एंड व्हेन यू रीड टेस्ट ऑफ द आर डी अबरवाइज, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर। और 20th सेंचुरी से तक तो सबसे ज्यादा रिसर्च उसी पर हुआ था, 20th सेंचुरी पे बहुत पॉपुलर थी। बाद में वी फाइंड सम न्यू ट्रेंड, सम न्यू मूवमेंट, सारा चीज आता है। तो न्यू ट्रेंड्स और न्यू मूवमेंट्स में आने के बाद वी फाइंड टी एस एलियट, वी फाइंड सम अदर ग्रेट राइटर, जिसमें रिवाइवल ऑफ पोइट्री और ड्रामा होता है। लेकिन 19th सेंचुरी में, इन द एज ऑफ विक्टोरिया, हार्डी बहुत पॉपुलर, और हार्डी की पॉपुलैरिटी 20th सेंचुरी में तक भी रही, चूंकि हार्डी डाइड इन 1928। तो हार्डी एज अ राइटर जो है, अगर फेमस है तो नावलिस्ट के रूप में फेमस है। उनका नावल क्या है, रीजनल नावल है। उन्होंने पोयम भी लिखा, उनकी जो पोयम है, लव पोयम है, डेथ को लेकर, इमानेंट विल को लेकर के, और विक्टोरियन जो स्पिरिट है, वो सारी चीजें आपको, एलियनेशन भी नजर आएगा, लोनलीनेस नजर आएगा। लेकिन लास्ट में जो है, इन द एंड ऑफ, वेदर दैट इज नॉवेल, वेदर दैट इज यू कैन से कि पोयम, you find the note of meliorism. He always expect कि something will be better, things will change, things will not remain same। चीजें एक जैसी नहीं रहेंगी, बल्कि क्या होंगी, चीजें चेंज होंगी। ये उनका विश्वास, इज द बिलीफ ऑफ दैट मैन, इज द बिलीफ ऑफ दैट मैन कि थिंग्स विल चेंज। So these things you find. And second aspect, as a writer, when we talk about Hardy, just I want to tell you कि हार्डी का जो अपना एक उनका अपना जो वे ऑफ राइटिंग रहा है, उस वे ऑफ राइटिंग में यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि लाइफ इज रिफ्लेक्टेड, एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ यू सी एज वी सी लाइफ इन आवर लाइफ। व्हाट आई वांट टू से, as we see life in our life, as we see life in our society. Hardy does not talk about angel. Hardy does not talk about supernatural character, fairies. He does not talk about, you can say ki, Satan, God, princess, prince, but the men and women whom we see in our daily life. तो उनका अपना जो होता है मेन और वुमेन, और वो भी मेन और वुमेन कहाँ के,
not mega metropolitan city. Hardy does not talk about restaurant, he does not talk about pub, hotel, Z Square, बिग बाजार, उनका अपना कल्चर ही नहीं रहा है। उनकी अपनी में क्या होगा कि ही टॉक्स अबाउट द विलेज एरिया। उनका जो विलेज का ब्यूटी है, जो विलेज का अपना ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको लेकर के, और विलेज में रहने वाले जो आम आदमी है उनकी प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन दोज प्रॉब्लम्स आर जनरल प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि दैट प्रॉब्लम इज ओनली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर विलेज विच ही हैज टेकन, he generalizes it, and the beauty of that village is idealizes. And you will come to know कि whether you go in any village of the Europe, you will find the same color, the same beauty, the same taste। वैसा people थोड़ा सा हो सकता है कि कल्चर बदल जाए, लेकिन जियोग्राफिकल या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोकल कलर यू फाइंड द सेम। तो दिस इज हार्डी जो रहा। बाकी विक्टोरियन एज का जितना स्पिरिट है, चाहे आपका ऑप्टिमिज्म हो, पिसिमिज्म हो, मेलियोरिज्म हो, एंड इवन यू कम टू नो एलियनेशन है, लोनलीनेस है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, और ये सब चीजें रही है। लेकिन उन्होंने एक एक नया काम ये जरूर किया विक्टोरियन एज में कि जब सारे पोएट और सारे लोग शहर की जिंदगी के बारे में बता रहे थे, तब वो अपने आप को गांव की जिंदगी को लेके चले जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज नॉवेल। When the people or the novelist, when they were busy to tell the life of the city people, at that time he shifted from city to village area, and he just tells विलेज एरिया को लेकर के वो बात करते हैं। तो इतना ही बस, नॉट एट ऑल, इतना ही आपसे बात करेंगे, ये उनका चीजें रही है। एंड वी विल गो इन अ डिटेल्ड वे, तब आपको एक एक चीज समझ में आएगा कि हार्डी का क्या स्पिरिट रहा है, कैसे उन्होंने किया। ठीक हो।